Very good morning to everyone. We have started with the new chapter, that is accounting for incomplete records. I have introduced the chapter to you in the last lecture. Here, incomplete records means complete information of the business is not given. This happens for small scale businesses where they do not have they do not deal with large capital, and they, as they have short less amount of funds, they cannot appoint specialized people as accountants to look over the accounts. So the owner himself may maintain his books. He may just keep a diary and record इतना परचेस किया, इतना कैश है बिजनेस के लिए, इतना पैसा, इतना गुड्स लिया, इतना सेल किया, इतना कैश में सेल किया, इतना क्रेडिट में सेल किया. इसको the person, when you sell on credit, the name of the person is important. So all those things he is doing single, the owner, or he may have someone who some person, it may be a very small number of, like less number of, one staff, two staff, and normally the owner maintains the account. So that is known as, that system of account is known as single entry. You will have done this in your 12th standard, but this one is the advanced version. यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स करेंगे. इससे पहले you have not done final accounts. So यहाँ we will be doing in this chapter trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये मेन हमारा क्या रहेगा, सम्स में ये तीनों प्रिपेयर करना है. लेकिन as I had told you in the previous lecture also, that even the large organizations sometimes may have this incomplete records when there is suppose some unforeseen event. So suppose there was occurrence of fire, theft, तो ऐसे सिचुएशन में अकाउंट्स लॉस्ट, अकाउंट जो है वो लॉस्ट हो गया, तो ऐसा हम लोग ये वाला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं. ये सिचुएशन में भी. सो यहाँ पे लास्ट लेक्चर व्हाट आई हैव डन in the previous lecture, I have explained to all of you debtors account, bill receivable account, creditor account, and bills payable account. We have discussed these accounts in the previous lecture. Why have we discussed these accounts? जब हमें final accounts करना है तो ये सब accounts क्यों important है? Because these are supporting, these accounts will support our final accounts. Debtor account से हमें credit sales मिलेगा. Who are our debtors? To whom we sell goods on credit. तो हमें यहाँ डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल्स मिल सकता है. डेटर कम्स इन द बैलेंस शीट असेट साइड. सो डेटर अकाउंट से हमें डेटर का कितने कस्टमर्स को हमने क्रेडिट में सेल किया है एट द ईयर एंड व्हाट इज द बैलेंस, दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द डेटर अकाउंट. So that's why debtor account is important. Creditor account में same way आपको credit, who are our creditors, जिनको हम क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते हैं. सॉरी, क्रेडिटर्स कौन है, जिनसे हम सब गुड्स खरीदते हैं, जो हमें क्रेडिट में गुड्स सप्लाई करते. Who are our creditors? Who supply goods to us on credit. Who supply goods to us on credit are our suppliers. In the future we have to pay them the money. उनसे हमने क्या लिया है, उधार में गुड्स खरीदा है, तो हमें यहाँ से क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेस मिलेगा. क्रेडिटर ऑल्सो कम्स इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो इसके लिए भी क्रेडिटर अकाउंट इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल? बिल रिसीवेबल आर अवर डेटर्स, बट ये लोग से हमें एक अश्योरेंस है कि इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. सो वी नो दैट एग्जैक्टली विच डेट the money will be receivable from our debtors is a bill receivable document, correct? Bill payable, we have to pay to our
सप्लायर, वी हैव टू पे टू अवर सप्लायर्स, तो हम डेट देते हैं कि ये डेट में पे करेंगे, एक्चुअली दे आर अवर क्रेडिटर्स, बट बिकॉज वी साइन अ डॉक्यूमेंट promising that this particular day we will be making the payment, so that becomes bill payable. तो ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल डू दिस अकाउंट्स. ये स्मॉल सम है जिसमें पहला सम में सी, कम टू द question what is given. Let us come to this question now. Calculate the amount of debtors. What we want to do, calculate the amount of sundry debtors as on 31st March 2018. Calculate the amount of sundry debtors as on 31st March 2018. So ये क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये क्वेश्चन में we will have to calculate our debtors. We have to calculate our debtors. So what information is given? Debtors are our customers to whom we have sold goods on credit. So debtor क्या है? Liability है या asset है? Debtor is a asset because future में इनसे पैसा मिलेगा. So what is the first information given? First information given is balance as on 1st April 2017. अगर 31st March 2018 का डेटर्स कैलकुलेट करना है तो बैलेंस एज ऑन 1/4/2017, this becomes the opening balance. अगर ईयर 1/4/2017 को स्टार्ट हुआ है तो एंड होगा 31st March 2018. सो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है डेटर्स का, मींस जब हमने ईयर बिगिन किया इतना 50,000 was receivable from the डेटर्स. डेटर्स से इतना पैसा मिलना था. डेटर्स आर अवर कस्टमर्स. कस्टमर से इतना पैसा मिलना चाहिए. डेटर असेट है. असेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. असेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. तो लेट अस प्रिपेयर द डेटर अकाउंट. Let us prepare the debtor account. So they have asked us to prepare, give the balance, closing balance of debtors. तो debtor का ledger account prepare करते. So let us adjust the columns. Particulars, rupees, particulars, रुपीस. हियर अब बताओ, सबसे पहले डेटर इज अ असेट. ऑल ऑफ यू अग्री? तो असेट मींस डेबिट बैलेंस. तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो किधर का, वो टू बैलेंस बॉट डाउन है या बाई बैलेंस बॉट डाउन? बिकॉज इट इज अ असेट. असेट हैज अ डेबिट बैलेंस. तो ये जो बैलेंस है ये टू बैलेंस बॉट डाउन है. अगर लाइबिलिटी होता तो बोलते बाई बैलेंस बॉट डाउन. सो टू बैलेंस बॉट डाउन. इट इज हाउ मच? इट इज 50,000. इसके बाद बैड डेट्स ऑन ओपनिंग बैलेंस 2%. नाउ टेल मी, जब बैड डेट्स होगा, बैड डेट्स मतलब क्या? डेट्स विच आर इरिकवरेबल, मीन्स वी हैव गिवन क्रेडिट टू अवर कस्टमर्स कि अभी मत दो पैसा, बाद में दो. बट बाद में कितने लोग वापस देंगे पैसा? इज इट गारंटीड दैट ऑल ऑफ देम विल गिव द मनी बैक? सब लोग पैसा वापस देंगे? कुछ बैड डेट्स भी हो सकता है. सो बैड डेट्स कितना है? ओपनिंग बैलेंस का 2%. नाउ टेल मी, बैड डेट्स होगा तो डेटर ज्यादा होगा या कम होगा? मतलब डेटर ज्यादा होगा बैड डेट से या कम होगा? 50,000 आना था, 50,000 का 2% नहीं मिलेगा तो डेटर क्या होगा? कम होगा. डेटर कम होगा तो डेटर इज अ डेबिट बैलेंस, असेट है. कम होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में.
सो बाई बैड डेट्स क्या लिखेंगे? बिकॉज डेटर क्या होगा? कम होगा। क्यों? बैड डेट्स हो रहे, जहां पे 50,000 मिलना था डेटर से, अब 2% नहीं मिलेगा, सो डेटर विल बी reduced, नहीं मिलेगा। तो वो 50% कितना है? तो 50,000 into 2%, it comes to 1,000. Everyone are getting this answer, 1,000. Then discount to customers. Normally, see, when we want our debtors to pay the money, as of now, we want our debtors to pay the money. How do we influence them? We give them discount. We offer them discounts so that the debtors give our money or as soon as possible. आप बोलते कि अभी के अभी पैसा, अगर हम आपको डिस्काउंट देते, बट वी वांट यू ऑल टू पे अस इमीडिएटली, सो डिस्काउंट जब ऑफर करेंगे डेटर्स को, कस्टमर्स को, तो क्या होगा? डेटर ज्यादा होगा या कम होगा? डेटर डिस्काउंट दिया तो 50,000 में 1% का डिस्काउंट दिया तो उतना पैसा कम मिलेगा, सो डेटर क्या हो जाएगा? कम होगा। कम होता है, डेटर इज अ asset. Asset means debit balance. Till you're doing your accounts, everyone, you will never have, you cannot forget this. Debit credit जब तक करना है, जब तक वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में नहीं आता है, एंड अगर आगे फ्यूचर में फिर से आपको आगे स्टडी करना है तो याद रखना है, अगर अकाउंट्स, अगर सपोज एमकॉम अकाउंट्स ही करना है, देन यू कैन नॉट लीव दिस डेबिट क्रेडिट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इट। ये ध्यान में रखना है। असेट मतलब डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, एंड डेटर जो है वो कहाँ पे आता है? असेट में आता है ना, तो डेबिट बैलेंस हुआ। अब कम होगा तो डेबिट का उल्टा, हमारे अकाउंट्स में डेबिट का उल्टा क्या है? क्रेडिट। सो हम लिखेंगे बाई discount. We will write by discount. Discount again 1% of opening balance. Opening balance given is 50,000. Opening balance given is 50,000. 1% nikala. We are getting 500. We are getting 500. 1% of 50,000. Use a calculator and find it out whether all of you are getting 500. Then returns from customer. Customer are our debtors. Customer debtors का दूसरा वर्ड. So हमारे डेटर्स ने, हमारे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया 3,000, रिटर्न करेंगे तो क्या उसका पैसा पे करेंगे? आप शॉप में जाते हो, अगर आपको कैलकुलेटर खरीदना है, कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, अब और मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो, तो आप कैलकुलेटर जाते हो, शॉप में खरीदते हो, पैसा आपने दे दिया, तो उसके बाद सी you go to the shop, once you give the pay the money, you bring the calculator home, then you find out that there is some problem with the calculator. You go to the shop, you say ये रखो, मुझे मेरा पैसा वापस दो। नहीं होगा, आपने पैसा दे दिया है, now the shopkeeper will say दूसरा लो, ये I can give you this facility, you can take an other calculator, but you will not get your money back. आप छोटा अमाउंट का भी कैलकुलेटर फिर ले लेते हो, फिर भी आपको ऊपर का पैसा नहीं मिलने वाला है, तो आपको वही रेंज में देखना पड़ता है, करेक्ट? बिकॉज एक बार आपने शॉपकीपर को पैसे दे दिया, देन टू रिकवर दैट मनी बैक इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? लेकिन अगर आप वही चीज उधार में लेके जाते, आपने पैसा नहीं दिया है, तो फिर आप गुड्स दे दो वापस, अब वो आपसे पैसा मांगेगा? नहीं मांग सकता, आपने पैसा ही नहीं दिया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है? रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने 3,000 का गुड्स वापस किया, तो नॉर्मली दिस फैसिलिटी इज फॉर क्रेडिट सेल्स ओनली, तो ये 3,000 पे करेगा, फिर भी गुड्स रिटर्न किया तो क्या ये 3,000 पे करेगा? व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड, देन विल द कस्टमर पे दिस मनी? उसने 3,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो क्या ये 3,000 बिजनेस को मिलेगा? अभी
नहीं मिलेगा, मीन्स ये रिटर्न से डेटर क्या हो गया, कम हो गया ना। जहाँ पे 50,000 मिलना था, अब 3,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अब ये 3,000 कस्टमर से नहीं मिलेगा, कस्टमर विल नॉट पे यू दिस 3,000 नाउ। तो क्या हो रहा है, डेटर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट, बिकॉज डेटर इज अ असेट, असेट मीन्स डेबिट बैलेंस, कम होगा तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट। सो क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। अमाउंट इज नोन, amount is known to us, it's 3,000. Now tell me, collection from debtors, what do you mean by collection from debtors? Now just see the amount is 2,30,000, collection from debtors, and debtors का amount कितना है, 2,30,000, but opening balance debtor से हमें कितना आना था, 50,000, बट हम लोग डेटर से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, 2,30,000, ग्रेटर देन 50,000. व्हाट डज दिस मीन, कि हमने ये साल में और क्रेडिट में सेल किया होगा, तभी तो हमें 50,000 से ज्यादा कलेक्शन हो रहे. यू नो एनी सच पर्सन जिसको आप उधार दो 50,000 और वो आपको 2,30,000 वापस करे? नो वन विल डू दैट. मीन्स आपने और उधार दिया होगा कस्टमर्स को, तभी आपको 50 के जगह पे 2,30,000 का कलेक्शन हो रहा है, करेक्ट. आपको डेट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग मनी, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द डेटर, डेटर्स आर गिविंग यू मनी, डेटर्स आर पेइंग यू मनी. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब क्या, डेटर से पैसा मिल रहा है. मुझे बताओ, डेटर से पैसा मिला तो फिर भी क्या बैलेंस शीट में हम उनका नाम लिखेंगे? नहीं, डेटर से पैसा मिला मतलब डेटर कम हो जाएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मीन्स डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डेटर मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बट कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ज्यादा होता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट फॉर असेट्स, एंड डेटर इज अ असेट. असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बट अभी इनसे पैसा आ रहे तो कम हो जाएगा, कम होगा तो क्या करते, क्रेडिट में पैसा आ रहे तो व्हाट इज कमिंग इन, क्या, बाय कैश बैंक. एंड यू कैन इन ब्रैकेट ऑल्सो राइट कलेक्शन. ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, you can write here in the bracket that it is collection, collection from debtors. It is how much amount, 2,30,000, 2,30,000 you are getting from the debtors. Now यहाँ पे इसके बाद है कैश सेल्स. टेल मी, जिनसे जिनसे हमें, जिनको हम सेल करते हैं कैश में, क्या उनका नाम भी, वो भी हमारे डेटर्स है? डेटर्स कौन है, जिनको हम लोग क्रेडिट में सेल्स करते, जिनको हम कैश में सेल्स करते हैं, उनका हम, अब देखो शॉप, यू गो टू अ शॉप, ऑल ऑफ यू इन योर लाइफ हैव मस्ट हैव विजिटेड अ शॉप. कुछ तो खरीदा होगा अपने लाइफ में. ऐसा कोई है जिसने अभी तक कुछ भी बाहर जाके, घर के बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया और कुछ खरीदा ही नहीं है कोई भी शॉप से? ऐसा कोई नहीं होगा. सो आपने कुछ भी खरीदा, आपने खरीद के पैसा दे दिया, कैश दे दिया, तो वो शॉपकीपर आपको रोक के आपका नाम लिख के नोट करता है क्या? नो, इट कैन नॉट बी डन. when you are paying the money, he will record that so much cash received. बट लेकिन अगर आप उधार में लेते हो, आप, योर पेरेंट्स मस्ट बी ऑल्सो टेकिंग ग्रोसरीज, एंड कोई ऐसे भी होंगे जो ऐसे उधार में भी ग्रोसरीज लेते होंगे, तो दैट शॉपकीपर व्हाट ही विल डू, इतना वो लिख के रखेगा कि ये सो एंड सो पर्सन, एंड सबको उधार नहीं मिलता, नोन पर्सन. तो अगर सबको देंगे तो बैड डेट्स का सिचुएशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. If you know that person, if then only if you know that this person will
रिटर्न यू द मनी बैक। तो इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं ना, हर किसी को उधार दो, फिर पता चला आपका गुड्स भी गया और पैसे भी नहीं आए। करेक्ट। सो हियर कैश सेल्स डेटर अकाउंट में तो नहीं आएगा, बिकॉज कैश सेल्स मतलब हमने जिनको सेल किया कैश में, एंड दे आर नॉट अवर डेटर्स। Who are our debtors? The next one. तो सिर्फ डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो ये कैश सेल्स किधर, डेटर अकाउंट में तो नहीं आएगा। Then where does cash sales come? कैश सेल्स एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैश में सेल करो क्रेडिट में सेल करो, बोथ आर सेल्स। एंड सेकेंड, कैश में सेल किया तो क्या इंक्रीज हुआ, कैश अकाउंट, हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश बुक में आएगा ये चीज। So next one which is important is credit sales. जब हम लोग क्रेडिट में सेल करेंगे, उधार में सेल करेंगे, तो क्या होगा, डेटर ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। When we are selling goods on credit, our debtor balance will increase, our debtor balance will increase. तो debtor is a asset, डेबिट बैलेंस ज्यादा हुआ डेटर तो भी डेबिट में लिखेंगे, कम हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू व्हाट हैज हैपेंड क्रेडिट सेल्स, लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स, 2,50,000। नाउ एवरीथिंग इज डन, क्लोज दिस अकाउंट। ये अकाउंट को क्लोज करो। कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, सी यहाँ पे कौन सा साइड इज हैवी, डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा, देखो चेक विच साइड टोटल इज मोर, क्रेडिट और डेबिट। यहाँ पे आ रहा है 50 एंड 2,50,000, ये साइड का टोटल है 3 लाख एंड क्रेडिट का टोटल है 2,30,000 प्लस 1,000 इज 2,31,000, 2,31,500, 2,34,500 मीन विच साइड इज हैवी, डेबिट साइड हैवी है, ये है 2,34,500, क्रेडिट साइड का टोटल है 2,34,500 एंड डेबिट साइड का टोटल है 3 लाख। टेल मी विच अमाउंट इज ग्रेटर, डेबिट और क्रेडिट, 3 लाख इज ग्रेटर। सो 3 लाख हम अकाउंट्स में बैलेंसिंग करते हैं, तो ग्रेटर साइड का जो अमाउंट होता है, टोटल होता है, वो लेसर वाले जगह में भी लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, और यहाँ जो बाकी जो है उसको लिखेंगे दिस इज अवर क्लोजिंग बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, डेटर का बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। सो यही अभी हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्या रहेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो क्या करना है, 3 लाख में 2,34,500 माइनस करना है, तो कितना अमाउंट आ रहा है आपको, हाउ मच यू आर गेटिंग, 65,000, 65,500. So this 65,500 is the amount which has to be received from the debtor. मतलब पैसा मिला है 2,30,000 डेटर से, कलेक्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी 65,500 मिलना बाकी है। And in the first line itself they had told us what, calculate the amount of sundry debtors as on 31st March 2018. So that we have found out. So ये तो एक पार्ट हो गया सम का। अगर see if it's a ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओनली, तो आपको पूरा सम तो नहीं होगा, बिकॉज पूरा सम में पूरा फाइनल अकाउंट्स करना है। बट ये छोटा छोटा जिसमें आपको ऐसे दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस डेटर का इतना, कलेक्शन इतना, बैड डेट्स इतना, सो हाउ मच विल बी द क्लोजिंग, क्रेडिट सेल्स भी दिया, हाउ मच विल बी द क्लोजिंग डेटर। सो एड माइनस करके आप ये अमाउंट निकाल सकते हो। एंड नीचे ऑप्शन में आपको 4 आंसर दिया है, आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखोगे 4 में से कौन सा आंसर आ रहा है। अगर कोई अलग ही 5th ऑप्शन आया है आपको, तो आपका रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको 4 में से एक आंसर कैलकुलेट करके आ रहा है, तो देन यू अंडरस्टैंड व्हिच इज योर आंसर एंड यू कैन मार्क दैट ऑप्शन ओनली इफ इट्स अ
अगेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर ऑफलाइन है तो ऐसा पूरा अकाउंट बनाने के लिए 2 मार्क्स, अगर सपोज मैक्सिमम, ये इसको 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे सकते। बट आपको, जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न भी एक्सप्लेन किया है, तो जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है कम से कम। अगर ए बी का 2 क्वेश्चन आया तो वो 10 मार्क्स का हो सकता है। तो वी डोंट नो कैसे, लेकिन वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट विल बी अ ऑनलाइन एग्जाम और इट विल बी अ ऑफलाइन एग्जाम. So with this sum, I will end this lecture. Thank you very much, everyone.